In today's lesson, we will understand the concept of derived SI units. The concept is extremely vital for understanding the quantification of derived physical quantities of matter. Physical quantity is a measurable quantity, that is the property of matter which can be quantified. There are two different types of physical quantities associated with matter. One, we call it as fundamental or base physical quantity of the matter, and the other is derived physical quantity of matter. The units which we use to measure the seven base physical quantities of matter are called as SI units, and I have already uploaded a video lecture on 7 base SI units. If you have not watched that video lecture yet, please click on the link popping up on your screens now and understand the concept. So let us start with this crucial topic, that is derived SI units. Hi everyone, welcome to my YouTube channel Gen Study, and I am your friend Sabza. First, let us understand the definition of derived SI units. A derived SI unit is a unit of measurement that is derived from the seven base or fundamental units of measurement specified by System International Units, that is SI units. They are either dimensionless or are expressed as a product of one or more of the base units. These derived units are used to measure physical quantities that are derived from more than one fundamental quantity. डेफिनेशन को और अच्छे से समझने के लिए हम लोग डिफरेंट डिराइव्ड क्वांटिटीज के डिफरेंट डिराइव्ड यूनिट्स को यूज करेंगे और कंसेप्ट को समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ एरिया, और उस एरिया से हम पता करेंगे कि उसके लिए डिराइव्ड यूनिट क्या है। एरिया हम जानते हैं कि हम मेजर करने के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि लेंथ को मेजर करने के लिए जो हम बेस यूनिट यूज करते हैं वो है मीटर, और अगेन ब्रेड्थ को भी मेजर करने के लिए जो हम बेस यूनिट यूज करते हैं वो है मीटर। तो जो एरिया का फॉर्मूला बनेगा, यूनिट बनेगा, डेराइव्ड यूनिट बनेगा, तो वो क्या होगा? मीटर स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये हो गया एरिया का डेराइव्ड यूनिट। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट डेराइव्ड क्वांटिटी पे आते हैं, वो है वॉल्यूम। देखिए अभी जो आपने एरिया को समझा, तो एरिया जो है वो टू डायमेंशनल स्पेस होता है, ठीक है जी, टू डायमेंशनल एरिया होता है। लेकिन जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का मतलब होता है कि किसी ऑब्जेक्ट ने या किसी मटेरियल ने स्पेस में कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, वो उसका वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है। तो वॉल्यूम को निकालने के लिए इसका मतलब आपको उसका लेंथ भी कंसिडर करना होगा, ब्रेड्थ भी कंसिडर करना होगा, और हाइट भी कंसिडर करना होगा। देयरफॉर तो वॉल्यूम के लिए आपके पास जो फॉर्मूला बनता है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, राइट। और हमें पता है कि लेंथ को मेजर करने के लिए जो हमारे पास बेस यूनिट है वो है मीटर, और इसी तरह ब्रेड्थ के लिए भी हमारे पास मीटर, और हाइट के लिए भी हमारे पास मीटर। ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि वॉल्यूम को मेजर करने के लिए जो हमारे पास डिराइव्ड यूनिट बनेगा वो बनेगा मीटर क्यूब। तो ये हमारे पास है डिराइव्ड यूनिट फॉर मेजरिंग द डिराइव्ड क्वांटिटी ऑफ वॉल्यूम। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यही मैंने आपके लिए सामने लिखा भी हुआ है, मैं पढ़ लेता हूँ आपके लिए, ध्यान दीजिए। वॉल्यूम इज अ डिराइव्ड यूनिट यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ स्पेस occupied by an object or a substance. It is derived from the fundamental units of length, meter, that is meter, and is expressed in cubic meters or meter cube, or its subunits such as liter or milliliter. For example, the volume of a liquid can be measured using a graduated cylinder or a measuring cup. तो इस तरह से हम वॉल्यूम को समझ चुके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड derived quantity, that is density. Density is actually the measure of how tightly a material is packed together. It is the measure of mass per unit volume of a substance. It is derived by dividing the mass in kgs by the volume meter cube, and is expressed in kilograms per cubic meter, or it is subunits like grams per cubic centimeter. Density is often used to compare the heaviness or lightness of different materials. ठीक है जी। तो ये तो हो गया डेफिनेशन का मामला। चलिए आगे समझते हैं इसको, डेंसिटी एक्चुअली होता क्या है। ठीक है ना। तो हमें पता है कि जो डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम रो यूज़ करते हैं, और ये मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। और डेंसिटी जो है इसका मतलब, इसका जो डिराइव्ड यूनिट है मास का, आप जो है बेस यूनिट लेते हैं केजी, और वॉल्यूम का जो आप यूनिट डिराइव्ड यूनिट लेते हैं
वो है मीटर क्यूब, जो अभी हमने देखा। तो जो डेंसिटी का डिराइव्ड यूनिट बनेगा वो है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है जी। आई होप कि आपको डेंसिटी का डिराइव्ड यूनिट समझ में आ गया होगा और डेफिनेशन भी समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट डिराइव्ड क्वांटिटी है वो है मोलर मास। चलिए पता करते हैं कि मोलर मास के लिए क्या डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं। बच्चों, मोलर मास का डिराइव्ड यूनिट पता करने के लिए हमें पहले पता करना होगा कि वन मोल क्या होता है। देखिए, वन मोल एक कांस्टेंट नंबर है जो कि बराबर होता है अवागाड्रोस नंबर के, अवागाड्रोस कांस्टेंट के। तो अवागाड्रोस कांस्टेंट जो है वो वन मोल जो नंबर रिप्रेजेंट करता है वो है 6.022 टाइम्स 10⁻23। ठीक है जी। अगर इसका मतलब अगर आपके पास किसी एटम के इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है, कोई एटम आपके पास इस नंबर में है 6.022 इंटू 10⁻23, तो वो नंबर जो है उस एटम का वन मोल रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। और उस पर्टिकुलर एटम का जब आप इतना नंबर लोगे 6.022 इंटू 10⁻23 यानी कि वन मोल जब लोगे, उसका जो वेट होगा उस टाइम पे, जो उसका मास होगा इतने पार्टिकल्स ऑफ अ पर्टिकुलर एटम का जो वेट होगा, यानी कि वन मोल ऑफ एटम का जो वेट होगा वो उसका मोलर मास कहलाएगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मोलर मास किसे कहते हैं। कि किसी सबस्टेंस का वन मोल लेना, उस सबस्टेंस का वन मोल कितना होगा 6.022 टाइम्स 10⁻23 पार्टिकल उस सबस्टेंस के, उन पार्टिकल्स का जितना मास होगा वो उसका मोलर मास कहलाएगा। ठीक है जी। और मोलर मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम पर मोल। ठीक है, ग्राम पर मोल, और आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ग्राम पर मोल। ठीक है जी। तो ये इसका डिराइव्ड एसआई यूनिट हो गया। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए यही बात हम जो है यहाँ पे पढ़ लेते हैं डेफिनेशन से। ठीक है। तो देखिए, मोलर मास इज अ डिराइव्ड यूनिट यूज्ड इन केमिस्ट्री टू मेजर द मास ऑफ अ सबस्टेंस पर मोल। इट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स पर मोल. Molar mass is calculated by dividing the mass of a substance in grams by its amount in moles. ठीक है जी, जैसे हमने लिखा ग्राम पर मोल, वही कह रहा है ये। ठीक है। इट इज पर्टिकुलरली यूजफुल इन केमिकल इक्वेशंस, जब आप रिएक्शंस को बैलेंस करते हो उस टाइम पे, एंड कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग केमिकल रिएक्शंस। ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट derived quantity, that is concentration. Concentration simply means the amount of solute dissolved per liter of a solution. ठीक है जी। सोल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व किया गया है उसको जब आप मालूम करोगे तो उसको कंसंट्रेशन बोलते हैं। ये कंसंट्रेशन को जो यूनिट मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है उसे हम बोलते हैं मोल पर लीटर, और मोल पर लीटर को ही हम मोलैरिटी बोलते हैं। ठीक है जी। तो चलिए पता करते हैं कि मोलैरिटी को हम कैसे समझ सकते हैं। देखिए, मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है जी। तो उसे हम मोलैरिटी बोलते हैं। तो इसको हम फॉर्मूला से जब रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, ये मोलैरिटी कहलाता है, मोलैरिटी। ठीक है। अच्छा, चलिए इसको समझने के लिए हम एक कंडीशन क्रिएट करते हैं। मान के चलते हैं कि हमारे पास 5 ग्राम NaCl है, जिसको हमने डिजॉल्व किया है 140 ml ऑफ वाटर। ठीक है, हमने उसको 140 ml ऑफ वाटर में डिजॉल्व किया है। ठीक है जी। तो इसमें हमें कंडीशन क्या है कि हमें नंबर ऑफ मोल्स पता करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स, ग्राम्स को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मोल्स का, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू द गिवन मास। ठीक है जी। गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। ठीक है, मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। तो हमारे पास गिवन मास कितना है 5 ग्राम, डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना होगा इसका, एटॉमिक मास यूनिट ले लीजिए 23 प्लस 35 मान के चलते हैं, है ना, राउंड फिगर में, तो वो हो गया 58। ठीक है जी, 58। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास कितना आएगा, ये बनेगा आपके पास 0.0856 मोल्स। ठीक है। तो इस तरह से आपने जो है ग्राम्स को कन्वर्ट किया मोल्स में। अब आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हो फॉर्मूला में, जो आपने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए यूज़ करते हैं। तो मोलैरिटी यानी कि कंसंट्रेशन जो हम पता कर रहे हैं, मोलैरिटी किसके बराबर होगी फिर, मोलैरिटी का मतलब होता है अपने पास
0.0856 मोल्स डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो हमने कितना लिया हुआ है सॉल्वेंट, 140 ml है ना, तो 140 ml। अब देखिए चूंकि हमारे पास जो है मोल्स पर लीटर जो यूनिट हम यूज़ करते हैं कंसंट्रेशन को पता करने के लिए वो है मोल्स पर लीटर। मोल्स तो हमारे पास है, ये हो गया 0.0856 मोल्स, ठीक है ना, लेकिन ये लीटर नहीं है, ठीक है। तो इसको लीटर करने के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाइड बाय 1000, राइट। तो इसको जो 1000 से मल्टीपल करेंगे आप, तो आपके पास क्या आएगा, मोलैरिटी जो है आपके पास बनेगी कितनी, इस सॉल्यूशन की 0.611 मोल्स पर लीटर। तो ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ दी सॉल्यूशन। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो यही जो हमने न्यूमेरिकली सॉल्व किया, चलिए इसको डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इन केमिस्ट्री कंसंट्रेशन इज डिराइव्ड unit used to measure the amount of solute dissolved in a given amount of solvent. It is expressed in moles per liter, जो अभी हमने देखा, और its subunits such as molarity, ठीक है जी। concentration is crucial for determining the reactivity and behavior of substances in various chemical processes like reactions and solutions. आई होप कि आपको कंसंट्रेशन भी समझ में आ गया होगा, और इसका जो डिराइव्ड यूनिट है मोल्स पर यूनिट वो भी हमें समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट अस टेक द अनदर डिराइव्ड क्वांटिटी दैट इज वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी। नाउ ऑल ऑफ यू नो दैट वेलोसिटी मींस डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम, राइट, डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। अब डिस्टेंस जो है वो लेंथ ही है, तो उसका जो बेस यूनिट होगा वो मीटर है, ठीक है जी। और टाइम का जो यूनिट अब लेते हैं वो है सेकंड, तो इसका जो वेलोसिटी का जो डिराइव्ड यूनिट होगा वो मीटर पर सेकंड, ठीक है जी। इसी तरह एक्सेलरेशन को जो आप मेजर करोगे तो उसके लिए क्या यूनिट करते हैं यूज़ हम, तो पहले हमें पता है कि एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, ठीक है ना, पर यूनिट टाइम। अभी हमने देखा कि वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, राइट, और जो टाइम खुद से दिया हुआ है वो है सेकंड अगेन। तो इसका मतलब जो हमारे पास एक्सेलरेशन के लिए यूनिट आएगा वो क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो या फिर आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है जी। ये हो गया एक्सेलरेशन। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट डिराइव्ड क्वांटिटी दैट इज फोर्स, ठीक है जी। और फोर्स को मेजर करने के लिए हम जो डिराइव्ड यूनिट यूज करते हैं उसे बोलते हैं न्यूटन, ठीक है जी। तो आप इसको कैसे डिराइव करोगे, देखिए हमें पता है कि एज पर द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब फोर्स इसका मतलब फिर कितना हो गया, मास, और एक्सेलरेशन हमें पता है वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, राइट। और हमें ये भी पता है कि जो वेलोसिटी है वो क्या होता है, मास टाइम्स वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है जी, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, राइट। अभी हम करके देख चुके हैं, और अपना इसका होल में जो डिवाइड होगा वो टाइम होगा। तो इसका मतलब जो यूनिट बनेगा फोर्स का वो क्या होगा, मास को हम किलोग्राम्स में मेजर करते हैं, डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करते हैं, और टाइम को हम लोग सेकंड में मेजर करते हैं, ठीक है जी। तो वही बन जाएगा फोर्स का जो यूनिट बनेगा हमारे पास, जो डिराइव्ड यूनिट बनेगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये हो गया आपके पास फोर्स का डिराइव्ड यूनिट, ठीक है, जिसे आप 1 न्यूटन बोलते हो, क्लियर, 1 न्यूटन बोलते हो, ठीक है। यही मैंने लिखा भी है यहाँ पे। तो चलिए पढ़ते हैं इसको, क्या लिखा हुआ है। 1 Newton is a derived unit of force and is defined as the force that is required to accelerate a mass of 1 kg by 1 meter per second square in the direction of applied force. That's it. ये है हमारे पास 1 Newton यानी कि derived unit of the force. Okay, now let us check the next derived quantity which is pressure. ठीक है, चलिए प्रेशर के बारे में पता करते हैं। प्रेशर का मतलब होता है बच्चों, प्रेशर का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है जी। एक पर्टिकुलर गिवन एरिया में कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो प्रेशर कहलाता है।
अब फोर्स का जो है आपको पता है कि यूनिट क्या है, न्यूटन, और एरिया क्या है, मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब जो आप प्रेशर के लिए यूनिट यूज़ करोगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वो इसका ऐसा यूनिट होगा। इसी को आप पास्कल भी बोलते हो, पास्कल भी बोलते हो, ये जिसको आप पी ए से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है ना। तो अगर इसको फर्दर डिराइव करना चाहो तो न्यूटन के लिए आपको पता है क्या है, तो प्रेशर के लिए क्या बनेगा फिर, न्यूटन किसके किसके बराबर होता है, किलोग्राम, जो आपको डिराइव करके दे दिया अभी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। तो डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर, राइट, ये स्क्वायर और ये मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो पास्कल बचेगा, 1 पास्कल जो बचेगा या प्रेशर के लिए जो यूनिट होगा वो क्या होगा, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है जी। ये आपका 1 पास्कल हुआ जिसे आप प्रेशर के लिए, प्रेशर मेजर करने के लिए यूज़ करते हो। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते, ओके, लेट अस चेक वन मोर डिराइव्ड क्वांटिटी जिसको हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी मैं सिंपली उसके लिए लिखूंगा के एंड ई, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इट्स अ टाइप ऑफ एनर्जी विच अ बॉडी पोजेसेस बाय वर्चू ऑफ इट इज मोशन। और इसको आप जो फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हो काइनेटिक एनर्जी, तो उसके लिए आप लिखते हैं 1/2 टाइम्स मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर, ठीक है, वेलोसिटी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो अगर इसका यूनिट डिराइव करना हो, काइनेटिक एनर्जी का जो डिराइव्ड यूनिट होगा वो 1/2, इसको तो वैसे ही छोड़ दीजिए। मास का क्या होता है, किलोग्राम, क्योंकि 1/2 कांस्टेंट है, इसके लिए कोई यूनिट नहीं लगेगा, ठीक है, किलोग्राम। और वेलोसिटी आपको पता है डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, राइट, डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। इसको आगे बढ़िए, तो मास यानी कि केजी, ठीक है, वेलोसिटी यानी कि डिस्टेंस यानी कि मीटर, राइट, और टाइम यानी कि सेकंड, और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। इसी को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया डिराइव्ड यूनिट फॉर मेजरिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी विच इज़ इन मोशन, ठीक है। उसके लिए जो है यूनिट ये लगेगा, इसी को आप 1 जूल भी बोलते हैं, ठीक है। 1 जूल में आपको और टर्म में भी समझा दूंगा। बच्चों यही यूनिट आप जो आपने काइनेटिक एनर्जी के लिए यूज़ किया है ना, यही आप पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी यूज़ करते हो। और पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है कि जब कोई बॉडी एक रेस्ट स्टेट में होती है, अपनी एक पोजीशन में होती है, तो उसकी वजह से उस स्टेटस की वजह से जो उसका एनर्जी होगा वो उसका पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही है। चलिए आगे, ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज 1 जूल इन टर्म्स ऑफ वर्क डन, ओके। तो समझते हैं कि जो यूनिट जूल है वो किस तरह बनता है। मान के चलिए कि हमारे पास एक बॉडी है जो स्पॉट ए पे है, ठीक है, और उस पर आपने कुछ फोर्स यानी कि 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया हुआ है। और इस 1 न्यूटन फोर्स जो अप्लाई किया है उसी डायरेक्शन में, ये जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया है उसी डायरेक्शन में ये बॉडी मूव हुई है, और इसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो 1 मीटर कवर किया है। तो इसका मतलब जो वर्क डन हुआ है वो किस तरह हम लिखेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स टाइम्स द डिस्टेंस कवर्ड। इसका मतलब वर्क डन किसके बराबर होगा, फोर्स के लिए 1 न्यूटन और डिस्टेंस के लिए 1 मीटर, ठीक है जी। तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा 1 न्यूटन पर मीटर, 1 न्यूटन मीटर, ठीक है जी, 1 न्यूटन मीटर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 न्यूटन का मतलब क्या होता है, 1 न्यूटन का मतलब होता है किलोग्राम, ठीक है जी, मीटर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। तो इसके साथ में मीटर भी होगा अगेन, जो यही वाला मीटर है, तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो अभी आपने जब काइनेटिक एनर्जी का यूनिट देखा तो वो भी यही था, इसी को आप 1 जूल बोलते हैं, ठीक है। ये 1 जूल ऑफ वर्क है। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। आगे बढ़ने से पहले हम लोग पहले डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं, ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन क्या है। जूल इज अ डिराइव्ड यूनिट ऑफ एनर्जी, ऑफ कोर्स डिराइव्ड फ्रॉम द बेस यूनिट्स ऑफ किलोग्राम, राइट, किलोग्राम से डिराइव किया गया है, मीटर से डिराइव किया गया है, और सेकंड से डिराइव किया गया है, ये आपने अभी देखा। इट इज इक्वल टू द एनर्जी, ये वो एनर्जी होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट एनर्जी which is transferred to the object when a force of 1 न्यूटन acts on that object, ठीक है जी। उस ऑब्जेक्ट पे जब 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई होता है
इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, क्योंकि ये पॉजिटिव वर्क हो रहा है इसीलिए ये डायरेक्शन का भी ख्याल रखना होगा। ठीक है, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा उसी डायरेक्शन में मोशन भी होगी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होगी। चलिए देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बच्चों, ये हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स है, उनके सिंबल्स, उनके बेस यूनिट्स सारे तो नहीं है, कुछ है, और इससे कुछ एक्स्ट्रा मैंने जो है आपको अभी डिराइव करके भी दिए हुए हैं। आई होप कि आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। तो आज के क्लास में मैंने आप लोगों को समझाया कि डिराइव्ड यूनिट क्या होता है, फिर उनको कैसे डिराइव करते हैं, वो सब हम इस क्लास में समझ चुके हैं। ठीक है, तो प्लीज़ डू रिवॉर्ड अस फॉर आवर एफर्ट्स। हम आपके लिए मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ आपसे इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमें सब्सक्राइब करेंगे, आप हमारे वीडियोस को लाइक करेंगे और इनको शेयर करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले अच्छे से क्लास के साथ में अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।